Assalamu alaikum, Ababil 1 English language course. I hope you're all doing well. Well, this is not. Okay. So today we will be focusing on what is direct and indirect speech. I'm going to give you detailed information about this topic and then we will continue with it. If you have any problem related to any of the points that I tell you in this session, you can come up with your questions either in the chat box or you can pour your questions in the main WhatsApp group and I'll respond. Direct speech. Direct speech repeats or quotes the exact words spoken. जो आपकी डायरेक्ट स्पीच होती है वो रिपीट करती है या कोट करती है एग्जैक्ट वर्ड्स को जो कि बोले जाते हैं. When we use direct speech in writing, we place the words spoken between quotation marks. Quotation marks के दरमियान आप हमेशा direct speech को write करते हैं and there is no change in these words. और इन words में कोई change जो है वो नहीं आता. We may be reporting something that's being said now, for example, a telephone conversation or telling someone later about a previous conversation. So what we do over here is कि आप either किसी के कहे हुए words को जो हैं वो बता रहे हैं जिसने किसी ने अभी कोई वर्ड्स कहे हैं या फिर कुछ टाइम पहले के किए हुए वर्ड्स हैं जिनको आप एज इट इज बताते हैं. दैट इज अ डायरेक्ट स्पीच, राइट. फॉर एग्जाम्पल शी सेज व्हाट टाइम विल यू बी होम. तो ये जो आपको कोटेशन मार्क्स में वर्ड्स नजर आ रहे हैं ये है आपकी डायरेक्ट स्पीच. She said, what time will you be home? And I said, I don't know. There's a fly in my soup, screamed Simon. John said, there's an elephant outside the window. So all these words that have been underlined, these quotations, and they've been put in quotes, in quotation marks, ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है. ये किसी और के वर्ड्स हैं जो कि एज इट इज आपने यहाँ पे राइट कर दिए या एज इट इज आप बोलते हैं. So that is called a direct speech. What is indirect speech? Reported or indirect speech is usually used to talk about the past, so we normally change the tense of the word spoken. Reported speech या जो indirect speech होती है वो usually आप past के बारे में जब बात करते हैं तो तब आप use करते हैं और आप उसमें tense जो है उसका change कर देते हैं words का जो कि बोले जाते हैं. We use reporting verbs like say, tell, ask. Reporting verbs इसमें आपके say, tell और ask आ जाते हैं और उसके साथ आप that use करते हैं to introduce the reported words. Inverted commas are omitted. You don't use inverted commas. Examples, she said, I saw him. This is your direct speech. She said that she had seen him. This is your indirect speech. That may be omitted. She told him that she was happy. She told him she was happy. आप that mention भी कर सकते हैं, that use भी कर सकते हैं और that को omit भी कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. So I saw him is your direct speech and जब आप इसको convert करेंगे indirect में तो वो हो जाएगा she said that she had seen him. ये आपकी एक वीडियो है जो कि मैं आपको कुछ देर बाद दिखाऊंगी. Let's continue with the points related to direct and indirect speech. Say and tell जो है वो हम कब use करते हैं? Say when there is no indirect object. जब आपके सेंटेंस में indirect, जब आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं होता तो तब आप said यूज करते हैं. He said that he was tired. अब said के बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसलिए हम said यूज कर सकते हैं. लेकिन tell आप तब यूज करते हैं जब सेंटेंस में एक indirect ऑब्जेक्ट होता है. He told me. Me over here is your indirect object जो कि आप यूज कर रहे हैं because you have used the word told. तो told के साथ जो है वो हमेशा आपका indirect speech आती है. Sorry, told के साथ आपका हमेशा object आता है. Said के साथ आपका object नहीं आता. He said that he was tired. He told me that he was tired. So me over here is an indirect object जो कि tell के साथ use हो रहा है. Talk and speak. Use these verbs to describe the action of communicating. जब आप कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं और उसका एक्शन आप शो करते हैं तो आप ये वर्ब्स यूज करते हैं डिस्क्राइब करने के लिए. He talked to us. She was speaking on the phone.
सो टॉक और स्पीकिंग जो है वो एक्शन है, कम्युनिकेशन को शो करने के लिए हम टॉक या स्पीक यूज करते हैं. यूज दीज वर्ब्स विद अबाउट टू रेफर टू व्हाट वाज सेड. अगर आपने किसी बात की तरफ रेफर करना है तो फिर आप जो है अबाउट यूज करते हैं. ही टॉक्ड अबाउट हिज पेरेंट्स और ही टॉक्ड टू अस अबाउट हिज पेरेंट्स. तो टॉक और स्पीक जो है वो जब आप एक्शन ऑफ कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो अब आप ये यूज करते हैं. डायरेक्ट स्पीच जो है उसमें हम क्या होता है डायरेक्ट स्पीच? दिस मैसेज ऑफ द स्पीकर इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन हिज एक्चुअल वर्ड्स विदाउट एनी चेंज. डायरेक्ट स्पीच में जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं वो एज इट इज किसी चेंज के बगैर जो है वो मेंशन किए जाते हैं या यूज किए जाते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं आती. इनडायरेक्ट स्पीच जो है वो मैसेज ऑफ द स्पीकर है विच इज कन्वेड और रिपोर्टेड इन आवर ओन वर्ड्स. इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड जो है वो चेंज हो जाते हैं. एग्जाम्पल्स व्हेन यू कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच. जेना सेड आई एम वेरी बिजी नाउ. ये आपकी डायरेक्ट स्पीच है, कोटेशन मार्क्स में आ रही है, और आपकी जो कोटेशन मार्क्स जब स्टार्ट होते हैं तो उसमें आप फर्स्ट वर्ड को कैपिटलाइज करते हैं. इनडायरेक्ट स्पीच, जेना सेड दैट शी वाज वेरी बिजी देन. मैं आपको बताऊंगी अभी, लिस्ट एक दूंगी जहां पे आप ये जैसे मैंने नाउ को देन में यूज चेंज किया है, कौन से वर्ड्स चेंज होते हैं उनकी आपको भी एक लिस्ट मिल जाएगी. तो जब हमने डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट किया तो हुआ क्या है? इन्वर्टेड कॉमास या कोटेशन मार्क्स जो है वो ओमिट हो गए हैं और सेंटेंस का एंड जो है वो एक फुल स्टॉप से हो रहा है. कंजंक्शन दैट जो है वो आप यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में. प्रोनाउन आई जो है वो शी में कन्वर्ट हो जाएगा. ये भी लिस्ट आपको भी मिल जाएगी जिसमें प्रोनाउंस की जो क्या चेंजेस होती हैं वो मैं आपको बता दूँ. द वर्ब एम इज चेंज्ड इनटू वाज. सो प्रेजेंट टेंस जो है वो पास्ट में चेंज हो गया है. अभी आप देख लेंगे कि कौन सा टेंस किस टेंस में चेंज होता है, आगे आपको मैं सारे रूल्स बता दूंगी. और एडवर्ब नाउ जो है वो देन में चेंज हो गया. ये लिस्ट भी आपको मिल जाएगी. सो दीज आर द चेंजेस that take place when you convert a direct speech into an indirect speech. Conversion rules as per the reporting verb. जब आप रूल्स जो हैं, जब आप कन्वर्ट करते हैं एक सेंटेंस को रिपोर्टेड इनडायरेक्ट स्पीच में, तो जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब होता है, सेड, से, टेल, ये रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि कोई रिपोर्ट कर रहा है आपके वर्ड्स को या किसी और के वर्ड्स को. तो जो रिपोर्ट कर रहा होता है उसको रिपोर्टिंग कहते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब. ही सेड, ही सेज, he asked, he inquired, he told. He said I am unwell. तो said जो है यहाँ पे, he said, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब है. I am unwell. So इसको चेंज जब करेंगे तो इस रिपोर्टिंग वर्ब के लिहाज से आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है वो इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होगी. He said that he was unwell. Said आपका पास्ट में है, इसलिए आपका जो डायरेक्ट स्पीच है जब वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हुई तो वो भी पास्ट टेंस में चेंज हो गया. जो आपका रिपोर्टिंग या प्रिंसिपल वर्ब है, अगर वो पास्ट टेंस में है तो जो प्रेजेंट टेंस हैं वो सारे पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो आपके टेंसेस जो हैं उनमें आपकी जो डायरेक्ट स्पीच है उसमें कोई चेंज नहीं आएगी. ही सेज और ही विल से. सेज और विल से वो रिपोर्टिंग वर्ब है जो कि या तो प्रेजेंट में है या फिर फ्यूचर में है. तो आपकी डायरेक्ट स्पीच है आई एम अनवेल, वो चेंज नहीं होगी, उसका टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा. He says or he will say he is unwell, or he says or he will say that he is unwell. Indirect speech में आपका tense जो है वो change नहीं होता अगर जो words quotation marks के अंदर जो है वो कोई universal truth या कोई habit बता रहे होते हैं. कोई रूटीन या कोई हैबिट या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ अगर बताया जा रहा है डायरेक्ट स्पीच में तो इनडायरेक्ट स्पीच में जाके वो वर्ड्स चेंज नहीं होंगे. They said we cannot live without water. अब ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हम पानी के बगैर नहीं रह सकते. They said that we cannot live without water. So आप किसके जो वर्ड्स हैं उनको चेंज नहीं करें. Conversion rules of present tense in direct speech. प्रेजेंट टेंस में जो रूल्स हैं डायरेक्ट स्पीच के वो क्या होते हैं और वो कैसे चेंज होते हैं. प्रेजेंट चेंजेस इनटू पास्ट, सिंपल पास्ट. I am happy, she said. She said that she was happy.
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाता है. आई एम रीडिंग अ बुक, ही एक्सप्लेन दैट ही वाज रीडिंग अ बुक. प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. शी सेड ही हैज फिनिश्ड हिज फूड, शी सेड दैट ही हैड फिनिश्ड हिज फूड. प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाता है. ये एक और एग्जांपल. आई हैव बीन टू गुजरात, ही टोल्ड मी. He told me that he had been to Gujarat. कन्वर्जन रूल्स जब आप चेंज करते हैं तो चेंज करने के रूल्स जो हैं पास्ट और फ्यूचर टेंस के वो क्या हैं. सिंपल पास्ट टेंस पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है. He said Nina arrived on Monday. He said that Nina had arrived on Monday. Past continuous past perfect continuous में चेंज होता है. We were living in Goa, they told me that they had been living in Goa. फ्यूचर जो है वो आपका प्रेजेंट कंडीशनल, क्योंकि फ्यूचर टेंस जो है वो फर्दर किसी और टेंस में चेंज नहीं होता. फ्यूचर तो फ्यूचर है, उससे आगे वो पास्ट या प्रेजेंट में नहीं जाता, तो वो प्रेजेंट कंडीशनल में चेंज हो जाता है. प्रेजेंट कंडीशनल मतलब उसमें वुड आ जाता है. He said I will be in Kolkata tomorrow. He said that he would be in Kolkata the next day. Future continuous changes again into conditional continuous, क्योंकि फ्यूचर जो है वो आगे जाके किसी फर्दर टेंस में नहीं कन्वर्ट होता, तो वो कंडीशनल में कन्वर्ट होता है. She said I'll be using the car next Friday. She said that she would be using the car next Friday. ये कंडीशनल सेंटेंस है. जो आपके कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट कंडीशनल में आप will यूज करते हैं, सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल में आप would यूज करते हैं. सो उसके अकॉर्डिंगली जो है ये सेंटेंस कन्वर्ट होके कंडीशनल में फॉर्म हो गया. मॉडल वर्ब्स चेंज होते हैं या नहीं वो हम देखेंगे. कैन जो है वो कुड में चेंज हो जाता है, मे जो है वो माइट में चेंज हो जाता है, और मस्ट जो है वो हैड टू या वुड हैव टू में चेंज हो जाता है. आप ये एग्जांपल्स देख लेंगे, कोई कंफ्यूजन है आप पूछ सकते हैं. मॉडल्स जो कि चेंज नहीं होते वो हैं वुड, कुड, माइट, शुड एंड ऑट टू. ही सेड आई शुड फेस द चैलेंज, ही सेड दैट ही शुड फेस द चैलेंज. ऐसे आपने जो है इनको राइट कर देना है, आपके ये मॉडल वर्ब्स चेंज नहीं होते. इंट्रोगेटिव की कन्वर्जन क्या है. अगर आपका सेंटेंस जो है उसमें इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन है, तो वो कैसे चेंज होगा. रिपोर्टिंग वर्ब लाइक सेड और सेड टू changes into asked, inquired or demanded. He said to me, what are you doing? He asked me what I was doing. या आप inquired यूज कर लेंगे या आप demanded यूज कर लेंगे according to the requirement of your sentence. If sentence begins with auxiliary verb, the joining clause should be if or whether. यहाँ पे auxiliary verb से आपका sentence start हो रहा है जो कि आपका helping verb है, तो जब वो indirect speech में convert होगा तो वो if या whether में convert हो जाएगा. He said, will you come for the meeting? He asked them whether they would come for the meeting. If sentence begins with WH questions, then no conjunction is used as the question word itself act as joining clause. अगर sentence आपका WH word से start हो रहा है तो कोई भी कंजंक्शन जो है वो यूज नहीं होगी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड जो है वो ही ज्वाइनिंग के लिए इस्तेमाल होता है. Where do you live? asked the girl. The girl inquired where I lived. यहाँ पे आपका where था WH वर्ड, वही आपका यूज होगा. asked जो है वो inquired में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको कोई कंजंक्शन दैट या दैट जो है वो यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेयर जो है वो ही कनेक्शन या ज्वाइनिंग के लिए यूज हो रहा है. कमांड, रिक्वेस्ट, एक्सक्लेमेशन और विश. कमांड और रिक्वेस्ट जो हैं उनके लिए आप इनडायरेक्ट स्पीच में वर्ड्स जो यूज करते हैं वो है ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड या सजेस्टेड. ये कमांड एंड रिक्वेस्ट के लिए यूज हो रहे हैं. अगर आप किसी को किसी बात से मना करते हैं तो उसको कहा जाता है फॉरबिड या फॉरबिड, और वो जो है नेगेटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल होता है. द इम्पेरेटिव मूड is changed into the infinitive. Rafiq said to him, go away. Rafiq ordered Ahmed to go away. He said to her, please wait. He requested her to wait. So आप इस तरह जो है वर्ड यूज करते हैं. एक्सक्लेमेशन या विशेस जो होती हैं वो होती हैं ग्रीफ, सॉरो, हैप्पीनेस या अपलॉड व्हेन यू आर हैप्पी अबाउट समथिंग. इसमें आप क्या करते हैं, इसमें आपकी इंटरजेक्शंस जो हैं वो रिमूव हो जाती हैं. He said, alas, I am undone.
He exclaimed sadly that he was broke. Undone का मतलब होता है टूटा हुआ होना, broken होना. वो बहुत दुखी है तो वो कह रहा है that I'm undone, I'm broken. So alas के लिए आपने sadly यूज कर लिया. जब आप exclamations या wishes यूज करते हैं तो उसके लिए आप exclaim कहते हैं. Exclaimed जो है excuse me, वो interjections के साथ हमेशा यूज होता है. Interjections के लिए यूज होता है. So he exclaimed sadly that he was broke. Pronouns जब आप चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच. जो आपका वर्ब है said या say, ठीक है, वो फर्स्ट पर्सन ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच जो आपका I है वो चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली. रिपोर्टिंग स्पीच में आपका सब्जेक्ट है she. रिपोर्टिंग स्पीच she said जो है वो रिपोर्टिंग स्पीच है. I am in the 9th class, ये रिपोर्टेड स्पीच है. तो रिपोर्टेड स्पीच का जो I है वो रिपोर्टिंग स्पीच के she के लिहाज से कन्वर्ट होगा. She says that she was in 9th class. सेकेंड पर्सन जो है वो कैसे चेंज होता है, वो ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होता है. अगर आपके सेंटेंस में सेकेंड पर्सन you है रिपोर्टेड स्पीच में, तो रिपोर्टिंग स्पीच में them आ रहा है. उसके लिहाज से जो है आप you जो है उसको कन्वर्ट कर देंगे. He says to them, you have completed your job. He tells them that they have completed their job. थर्ड पर्सन जो है वो कैसे चेंज होता है. अभी हमने फर्स्ट की बात की, फिर हमने सेकंड की बात की. अब थर्ड जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में चेंज होता है या नहीं? नो, क्योंकि थर्ड पर्सन में ही आपने फर्स्ट पर्सन को भी थर्ड में कन्वर्ट किया था और आपने सेकंड पर्सन को भी थर्ड में कन्वर्ट किया था. तो थर्ड पर्सन जो है वो तो कन्वर्ट होगा ही नहीं. He says she is in 10th class. He says that she is in 10th class. Third person remains the same. ये आपके वर्ड्स हैं जो कि चेंज हो रहे होते हैं नियर या फार डिस्टेंस के अकॉर्डिंगली, टाइम या प्लेस के लिहाज से. इस लिस्ट को आप देख लेंगे. ये जो वर्ड्स हैं इनके अकॉर्डिंगली आप जो है अपने चेंजेस सेंटेंस में लेके आते हैं. ठीक है, डायरेक्ट है. She said my father came yesterday. She said that her father had come the day before. Yesterday के लिए day before यूज हो रहा है. She says or she will say my father came yesterday. She says or she will say that her father had come yesterday. यहाँ पे आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है say, वो आपका प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है will say. इसलिए आप जो है yesterday को चेंज नहीं कर रहे. ठीक है, जो सी पार्ट है, सी में आप देख रहे हैं कि शी सेज या शी विल से लिखा हुआ है. इसलिए क्योंकि वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है, इसलिए आपका जो वर्ड है yesterday वो चेंज नहीं होगा. लेकिन जब वो पास्ट में था शी सेड, तो फिर उसके लिए आपने चेंज किया था. पंक्चुएशंस में क्या चेंजेस आती हैं? जब आप पंक्चुएशन लगाते हैं डायरेक्ट स्पीच में, तो आपका जो फर्स्ट लेटर है दैट इज यू का वाई, वो हमेशा कैपिटल होता है. जब आप कॉमा, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन जो है वो हमेशा प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द रिपोर्टेड सेंटेंसेस एंड आर प्लेस्ड इनसाइड द क्लोजिंग इन्वर्टेड कॉमा. जो आपका इन्वर्टेड कॉमा है आप उसके अंदर हमेशा पंक्चुएशन मार्क लगाते हैं, चाहे वो कॉमा हो, फुल स्टॉप हो, क्वेश्चन मार्क हो या एक्सक्लेमेशन मार्क हो. और सेंटेंस का जो डायरेक्ट स्पीच है वो हमेशा आपका कैपिटल से स्टार्ट होता है. He asked, can I come with you? So अब आप इसमें देख रहे हैं क्वेश्चन मार्क जो है वो सेंटेंस के अंदर आ रहा है, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, और कैपिटल से स्टार्ट हो रहा है. अगर डायरेक्ट स्पीच जो है वो इंफॉर्मेशन के बाद आती है, जो कि कोई बोल रहा है और इनडायरेक्ट स्पीच उसके बाद आई है, तो कॉमा लगेगा. कॉमा इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द स्पीच. प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट इन्वर्टेड कॉमा, और वो पहले इन्वर्टेड कॉमा से पहले होता है. She shouted, कॉमा, quotes, stop talking, exclamation mark and quotation जो है वो क्लोज हो गई. तो कॉमा जो है वो आपके डायरेक्ट स्पीच से पहले आता है, आपकी इन्वर्टेड कॉमास से पहले आता है. थिंकिंग बैक, ऐसी सिचुएशन में आप ऐसे राइट करेंगे जब दरमियान में रिपोर्टिंग स्पीच आ रही है और उसके आगे पीछे आपकी रिपोर्टेड स्पीच आ रही है. Comma is used to separate the two reported speech and no capital letter to begin. जब आपकी सेकंड रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट हो रही है, इस सिचुएशन में आप उसको कैपिटलाइज नहीं करें.
हमने अभी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करने के सारे रूल्स डिस्कस किए हैं, ये इनडायरेक्ट से डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट होने के रूल्स हैं। से और सेड जो है वो करेक्टली यूज करना है, कंजंक्शन दैट, टू और इफ या वेदर जो है वो रिमूव कर देनी है, कोटेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क या फुल स्टॉप सेंटेंस के मूड के अकॉर्डिंगली ऐड कर देना है, कॉमा स्टेटमेंट से पहले आ जाएगा, फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, पास्ट टेंस प्रेजेंट में कन्वर्ट हो जाएगा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंगली अगर वो पास्ट में है, कन्वर्ट द पास्ट परफेक्ट आइदर इनटू पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट एज फाउंड नेसेसरी। इनडायरेक्ट है, ही आस्क्ड वेदर ही इज कमिंग, उसको आपने डायरेक्ट में कन्वर्ट किया, ही सेड टू हिम, कॉमा, आर यू कमिंग, क्वेश्चन मार्क इन इनवर्टेड कॉमर्स। तो यहाँ इनडायरेक्ट को जब आप डायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो इन रूल्स को माइंड रखें। That is all for today। और ये वीडियो जो है इससे रिलेशन नहीं है, इससे रिलेटेड एक वीडियो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगी। सो दैट इज ऑल फॉर नाउ। आई होप द टॉपिक जो है, क्योंकि फर्स्ट अटेम्प्ट में टॉपिक जो है वो क्लियर नहीं होगा बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट टेक्स टाइम। आप इसको रिकॉर्डिंग में देखें, उसके बाद आप इसको रिपीट करें इन रूल्स को, इंशाल्लाह डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर। Tomorrow I'm going to take your class and I'm going to take your class on Sunday as well. Saturday and Sunday आपकी class होगी and I would see you tomorrow. I'll tell you the time in the morning. So take very good care of yourself and Allah Hafiz.